नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे बिजली के मुलाजिमीन के लिए 1 करोड़ रुपए की हादसाती इंश्योरेंस स्कीम की है शुरू। 4 आने के चिकन के लिए 12 आने के मसाले जैसा हाल, जहां किसानों को सिर्फ झूठे वादे और धोखे ही मिल रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत को लेकर केटीआर का तंज। खलीज बंगाल में पैदाशुदा कम दबाव के सबब तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हो रही है बारिश। 29 मई तक जारी रह सकता है ये सिलसिला। येलो अलर्ट किया गया जारी। तेलंगाना के आज़मीन हज का 27वां काफिला रवाना। असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद की शिरकत। झंडी दिखाकर काफिले को किया रवाना। वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना में 31 मई को चलो तेलंगाना मार्च का किया जाएगा इनेकाद। उस्मान मोहम्मद खान की तमाम अफराद से शिरकत की अपील। दिल्ली में कांग्रेस ओबीसी का राउंड टेबल इजलास। मुख्तलिफ वज़रा, एमपीज़ और दीगर कायदीन की शिरकत। एप्पल कंपनी के जाली मोबाइल चीज़ें बेचने वाले 4 अफराद को हैदराबाद सिटी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे बिजली के मुलाजिमीन के लिए 1 करोड़ रुपए की हादसाती इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है, जो मुल्क में अपनी नौइयत की पहली स्कीम है। इस इक़दाम का मकसद मुलाजिमीन की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में इस स्कीम का ऐलान किया और दौरान ड्यूटी जांबाग होने वाले मुलाजिम नरेश के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चेक दिया है। భద్రత కోసం మొట్టమొదటిసారి ఇంత పెద్ద గతంలో జీవిత బీమాలు ఉన్నప్పుడు కూడా 5 లక్షల వరకు చేసి ఒకటేసారి ₹1 కోటి పైబడి ఏర్పాటు చేయడం అనేది కేవలం ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ క్యాబినెట్ తీసుకున్న ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం బహుశా కార్మికుల కోసం ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన చేసి ఉండకపోవచ్చు. ఒక కార్మికుడు తను చేసే పని ప్రమాదకరమైనటువంటి పని అని తెలిసినప్పుడు కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు కూడా దీనిపై దృష్టి సారించింది. మనం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళందరికీ బీమా ₹1 కోటి పైబడి ఇచ్చాక తిరిగి ఆ కుటుంబంలో కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ పేరు మీద వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశం కూడా ఉంది. వాళ్ళకి ఉద్యోగం కల్పిస్తూ కుటుంబ సభ్యులకి మళ్ళీ ప్రమాద బీమాతో మరణించినటువంటి కుటుంబానికి ₹1 కోటి ఆర్థిక సహాయం వచ్చేటట్టుగా చేయడం అనేది ఈ రెండు చాలా గొప్ప విషయాలుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. దీన్ని ప్రభుత్వ ఆలోచనని సంపూర్ణంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దీన్ని కార్యరూపంలో తీసుకొచ్చిన సీఎండీని కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ఇది మన ఎనర్జీ శాఖలో సింగరేణి కార్మికుల్లో ప్రవేశపెట్టాం. అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రవేశపెట్టాం. కొన్ని లక్షల మంది పనిచేసేటువంటి కార్మికులకు ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిజంగా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతకి నిబద్ధతకి ఈ మనకున్నటువంటి కన్సర్న్కి మానవత్వానికి ఒక ప్రతీకగా దీన్ని అందరం కార్మికులందరూ దృష్టి తీసుకుని చాలా ధైర్యంగా తర్వాత ఒక కాన్ఫిడెంట్ సెక్యూర్డ్ ఫీలింగ్తో మీ విధులు నిర్వర్తిస్తూ ఈ సమాజానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా సేవలు అందించవలసిందే. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की किसान कर्ज माफ़ी एक बड़ा धोखा है। वो गदवाल हल्के में बीआरएस कायदीन और कारकुनान के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि 4 आने के चिकन के लिए 12 आना का मसाला जैसा हाल है, जहां किसानों को सिर्फ झूठे वादे और धोखे ही मिल रहे हैं। ఎన్ని అబద్ధాలు ఎన్ని మాటలు ఉరకండి, తొందరగా పోండి, పరిగెత్తుకుంటూ పోండి, బ్యాంకు గురికి తెచ్చుకోండి, 2 లక్షల రుణం నేను వస్తున్నా రాగానే సోనియమ్మ మీద ఒట్టు మాఫీ చేస్తా అన్నాడు. డిసెంబర్ 9 నాడు సంతకం పెట్టేస్తా అన్నాడు. పిలిచిండు బ్యాంక్ వాళ్ళని పిలిచిండు. బ్యాంక్ వాళ్ళందరిని అడిగిండు, మరి 2 లక్షల దాకా రుణం మాఫీ చేయాలంటే ఎన్ని పైసలు అవుతాయి అని అడిగిండు. ఎన్ని పైసలు అయితే అంటే వాళ్ళు అన్నారు చాలా పైసలు అవుతాయి సార్ అని వాళ్ళు చెప్పారు. చాలా అంటే ఎంత అన్నాడు. దగ్గర 50,000 కోట్లు అవుతాయి సార్, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే 49,500 కోట్లు అవుతాయి సార్ అని చెప్పారు.
చెప్తే ముఖ్యమంత్రికి గొంతులో రాయబడ్డట్టు అయింది. వామ్మో ఇదేమి రాని తెలియక చెప్తిమి, ఏదో ఒకటి చెప్తిమి ఎట్లా అని ఆలోచన చేసినాడు. ఆయన బట్టి ఇద్దరు కూర్చున్నారు, ఏం చేయాలా ఆలోచన చేసి తెల్లారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడనో మీటింగ్లో మాట్లాడుతున్నాడు. 49,500 కోట్లని ముందు రోజే బ్యాంకులు చెప్పి పోతే తెల్లారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సభలో మాట్లాడతాడు, 40,000 కోట్లు నేను కట్టేస్తా, ఒక్క సంవత్సరం కడుపు కట్టుకుంటే 40,000 కోట్లు కట్టి పారేస్తా అన్నాడు. 9,000 కోట్లు మింగేసిండు రాత్రికి రాత్రి. 4 రోజులు అయింది క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టే, క్యాబినెట్కు రుణమాఫీ అని ఫైల్ తీసుకుపోయి ముఖ్యమంత్రి గారేమో 40,000 కోట్లు అని చెప్పే, 4 రోజుల తర్వాత క్యాబినెట్కు ఫైల్ పోతే రుణమాఫీ 31,000 కోట్లతోని రుణమాఫీ అని మళ్ళీ సపట్లు కొట్టే, మళ్ళీ 9,000 కోట్లు మింగిండు. తర్వాత మళ్ళీ చూస్తే అసెంబ్లీ పెట్టిండు, మేమందరం పోతిమి రుణమాఫీ ఏమో అని బడ్జెట్ పెట్టిండు. బడ్జెట్ కాడికి వచ్చే వరకు 26,000 కోట్లతోని రుణమాఫీ, మళ్ళీ 5,000 కోట్లు మింగిండు. మేం పరిశాన్యమా ఏడు వైరాలు. మళ్ళీ చూస్తే 4 రోజులకు సావు కబురు సల్లగా బట్టి గారు చెప్పే, ఎప్పుడు మళ్ళీ బ్యాంకులతో మీటింగ్ పెట్టిండు. అందులో తెలుగులో మాట్లాడితే మనకు తెలుస్తుందని చెప్పి వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక మన దానిలో కూడా అంతో ఇంతో ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఈ ప్రవీణ్ అన్న లెక్క నా లెక్క. మేము చదువుకున్నాం కొద్దిగా, బట్టన్న అంత తెలివి లేకపోవచ్చు కానీ మాకు కూడా కోస్తా ఉన్నది కదా. వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు ఇంగ్లీష్లో, ఎవరు బట్టి, ఇగో మేము పైసలు వేసినాం కానీ మీరు ఇంకా 11-12 కోట్లు కూడా ఇవ్వలేదు కదా రుణమాఫీకి అని తిడుతున్నాడు వాళ్ళని ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఎక్కడ కథ ప్రారంభమైంది? 49,500 కోట్ల కాడ ఇచ్చింది ఎంత? 11-12 కోట్లు. చారాన కోడికి బారాన మసాలా అంటే విన్నరా? ఇదే ఎక్కడ 49,000 కోట్లు, ఎక్కడ 11,000 కోట్లు, ఇంకా సిగ్గు లేకుండా దానికి రుణమాఫీ చేసేసినాం, మేమేదో ఏకేసినాం పీకేసినాం అని చెప్పి ఊర్ల నిండా ఫ్లెక్సీల మొఖాలకి. खलीज बंगाल में कम दबाव के ज़रिए असर तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। पीर की शाम हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। KPHP, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्चीबौली, नामपल्ली, मलकपेट और पुराने शहर समेत कई इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 29 मई तक जारी रह सकता है। विकाराबाद, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट, संगारेड्डी और गदवाल समेत कई अजला में बारिश की पेशकयासी की गई है। मंगल और चारशंबे को शदीद बारिश के इम्कानात के तहत मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम 27वां हज काफ़िला हज हाउस नामपल्ली से रवाना हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद ने शिरकत करते हुए काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह काफ़िला हज हाउस नामपल्ली से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, जहां से सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ के ज़रिए आज़मीन को जिद्दा रवाना किया गया। इस परवाज़ में कुल 287 आज़मीन हज शामिल थे, जो तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। हज कमेटी के अहदेदारान ने हज हाउस में आज़मीन को विदा किया और इनकी खैरियत व कबूलियत हज के लिए दुआएं की। ये भारत इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है, हर मजहब वाले जीने का हक है। मगर आज क्या हो रहा देश में सबको मालूम है, मैं बोलने का जरूरत नहीं है। देश के लिए आप हज को जा रहे, पवित्र महीना हज को जा रहे आप लोग, देश के लिए दुआ करो और तेलंगाना के लिए दुआ करो। तेलंगाना के CM श्री रेवंत रेड्डी साहब के लिए भी दुआ करो। तेलंगाना गवर्नमेंट गरीबों का गवर्नमेंट है। 10 साल के बाद कांग्रेस हुकूमत में आए से हैं और कांग्रेस गरीबों का पार्टी है, गरीबों के गवर्नमेंट है। हर बात रेवंत रेड्डी के जबान से निकले से बात, हर बात हर घर तक पहुंचने का वास्ते आप लोग दुआ करो। और बहुत सारे लोग हाजियाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्ट्रिक्ट दरगाह एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर एक अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट दरगाह एसोसिएशन के तरफ से आज़मीन हज के एक काफ़िले को रवाना करने के लिए आदिलाबाद से लेकर महबूबनगर तक तमाम अजला के सज्जादगान
और मुतवल्ली हजरात और खादिम हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये पुरनूर मंजर जो यहाँ का है, उनके साथ ये लोग वक्त बिताए हैं और हाजियों की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई की गई है। अच्छे और प्यारे बेहतरीन खिताबात हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही हम आज़मीन को बेहतरीन उलमा इकराम मात के खिताबात सुना रहे थे ताकि उनके मनासिक सही तरीक़े से अदा हो। आज आदाब मदीना से लेकर काबतुल्लाह में अपना वक्त कैसा गुजारें और वहाँ की मुश्किलात का सामना कैसा करें, और उनके लिए दुआएं भी की गई और दुआ करने की दरख्वास्त भी की गई। आज तेलंगाना भर से सजादगान यहाँ तशरीफ़ लाए हाजियों को विदा करने। GHMC की जानिब से याकूतपुरा हल्के में समर कोचिंग के तहत खेलों का सामान तकसीम किया गया है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने संतोष नगर और रेन बाज़ार में इस सामान को तकसीम किया। सामान में क्रिकेट किट्स, फुटबॉल, कराटे किट्स, वॉलीबॉल, योगा किट्स और कैरम बोर्ड्स शामिल थे, जो मुख्तलिफ कोचेस और ग्राउंड्स को दिए गए हैं। SRT1 कराटे रफी भाई रेन बाजार कराटे तो भाई नगर वॉलीबॉल नईमुल्ला हुसैनी थोड़ा पीछे के ठहरो भाई, जो नहीं है काम के नहीं है पीछे के ठहरो भाई, जरा पीछे को थोड़ा मदीना नगर के आ जाओ भाई। चलो 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल चलो भाई, ओके राइट। दो खुल जाना दीजिए राइट। इधर भाई इधर भाई रफी सर डिवीज़न और रेन बाज़ार डिवीज़न में जो ग्राउंड्स है, GHMC के जानिब से समर कोचिंग कैंप के लिए यहाँ पे जो खेलते हैं, जो लोग कोचिंग देते हैं, उनको जो ग्राउंड में जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसका मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मेरे साथ में संतोष नगर कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब और SRT रेन बाज़ार के कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब भी मौजूद थे। अभी राइट नाउ मैं संतोष नगर 7B ग्राउंड से बोल रहा हूँ। तो आज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके अंदर संतोष नगर में 7B ग्राउंड में क्रिकेट किट दिया गया है यहाँ के बच्चों के प्रैक्टिस के लिए। 7B ग्राउंड के अंदर फुटबॉल भी खेले जाते हैं, फुटबॉल भी दिया गया है जो खिलाते हैं, और मुखिज साहब क्रिकेट खिलाते हैं, फुटबॉल जहांगीर साहब खिलाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कराटे रफ़ी साहब करते हैं, रफ़ी साहब को भी कराटे का किट दिया गया है 7B ग्राउंड के अंदर। इसके अलावा संतोष नगर पोस्ट ऑफिस के अंदर वॉलीबॉल के लिए जनाब हारून साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है और वॉलीबॉल उनके हवाले किया गया है। और मस्कती ग्राउंड जो खुरमागुड़े में आता है, वहाँ पे कराटे के लिए अकरम साहब की जिम्मेदारी में है, उनको कराटे का किट दिया गया है। मस्कती नर्सरी के अंदर योगा मजहर साहब सिखाते हैं, योगा के मैट्स वो सब दिए गए हैं। उसके अलावा बन नाका 7B के पास जो आता कराटे MA गफ्फार साहब सिखाते हैं, उनको भी दिया गया है। और खलंदर नगर के अंदर जनाब खालिद साहब जो कराटे सिखाते हैं, उनको भी किट दिया गया है। ये तमाम चीज़ संतोष नगर डिवीज़न के लिए दिया गया है। इसके अलावा रेन बाज़ार के अंदर SRT के अंदर बॉक्सिंग की जिम्मेदारी समीर साहब की है, उनको बॉक्सिंग का किट दिया गया है। मुर्तज़ा नगर के अंदर कैरम इस्माइल साहब को दिया गया है कैरम बोर्ड, और SRT कॉलोनी में कैरम बोर्ड सैयद अली को दिया गया है। मस्जिद अरफात के ग्राउंड के अंदर क्रिकेट किट दी गई है मुबीन साहब को। मुर्तज़ा के लिए सालम साहब को दिया गया है। SRT कॉलोनी के अंदर कराटे में रफ़ी साहब को दिया गया है। रेन बाज़ार के अंदर कराटे जफर साहब को, मुर्तज़ा नगर के अंदर वॉलीबॉल नईम हुसैनी साहब को, SRT 2 के अंदर वॉलीबॉल अख्तर हुसैन साहब को, SRT 1 में वॉलीबॉल साजिद हुसैन साहब को और जुनेद साहब और साबिर साहब। SRT 1 में योगा भी होता है, उसका भी है। अशरफुल स्कूल के अंदर फुटबॉल मोहसिन साहब को दिया गया है। ये तमाम के तमाम GHMC की तरफ से समर कोचिंग कैंप के लिए, यहाँ के बच्चों की सहूलत के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हर साल GHMC समर कोचिंग कैंप के अंदर मटेरियल सप्लाई कराती है।
और जिसको जिम्मेदारी देते हैं उन लोगों को कोचिंग देते हैं। इसी के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और भी जो है क्रिकेट किट लोग खेलते थे उनको भी क्रिकेट किट दिया गया है। अल्लाह का करम है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के अलावा सेहत के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में और स्पोर्ट्स के अंदर भी दिलचस्पी रखते हुए तमाम प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ से सुनिए आप, जो GHMC की तरफ से जिम्मेदार है जनाब रऊफ साहब, जो हमारे पास के यहाँ के साउथ जोन के जिम्मेदार है, उन्होंने भी यहाँ पर आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर तमाम चीज़ दिए गए हैं और इंशाल्लाह रऊफ साहब की जिम्मेदारी रहेगी बच्चों को ट्रेन जो करा रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और हमारे कारपोरेटर साहब सब मिलके हम लोग आएंगे, पूरा बाज़ाब्ता इंस्पेक्शन करते हुए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर और चाहने वाले भी मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में कांग्रेस राउंड टेबल इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें AICC कायदीन, PCC सदूर, OBC वज़रा, MPs, MLAs और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी को ज़ात मरदमशुमारी के ऐलान पर मुबारकबाद पेश की गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से की गई ज़ात सर्वे पर तफसीली रिपोर्ट पेश की गई और बताया गया कि इसके बाद हुकूमत ने तालीम, सियासत और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन बढ़ाकर क़ानून बनाया, जिसे तमाम जमातों ने हिमायत दी। वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ 31 मई को चलो तेलंगाना मार्च मुनक़िद किया जाने वाला है। ये मार्च इंदिरा पार्क धरना चौक में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसका अहतमाम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी के जॉइंट को कन्वीनर उस्मान मोहम्मद ख़ान ने तमाम लोगों से शिरकत की अपील की है ताकि वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं तमाम तेलंगाना के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़हर एहतमाम तेलंगाना मार्च रखा गया है 31 में बरोज़े हफ्ता बामुकाम इंदिरा पार्क धरना चौक पर। वक्त है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान, जॉइंट एक्शन कमेटी जॉइंट कन्वीनर, उम्मत मोहम्मदिया के फ़िक्रमंद हजरात जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग अपने अहले ख़ानदान के साथ इस तेलंगाना मार्च में हिस्सा लें, जो 31 मई को धरना चौक इंदिरा पार्क पर रखा गया है। मैं गुजारिश करता हूँ तेलंगाना के मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से, इमामों से, मौज़िनों से, ख़तीबों से और हमारे दरगाहों के सज्जादों से, मसाजिद कमेटी से, दीगर कमेटियों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग इस मार्च के लिए आगे आए। और बिलखुसूस मैं कारोबारी लोगों से, ताजिर लोगों से, दुकानदारों से, डॉक्टर्स से, स्टूडेंट्स से, ऑटो यूनियन से, NGO से, मिलाद कमेटी से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, वेब चैनल वालों से, स्कूल वालों से, खबरस्तान वालों से, दीगर मोहल्ले वालों से, मसाजिद कमेटियों से, सबसे गुजारिश करता हूँ ये बहुत अहम मार्च है, इसमें हमको शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये वफ़ का जो क़ानून बनाया गया है मुसलमानों की माशियत को तबाह करने के लिए, इसके लिए हमको बिलखुसूस रोडों पर निकलना पड़ेगा और हमको अपने मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए रोड पे निकलना जरूरी है। यह जमहूरियत है, जमहूरियत में सरों की गिनती होती है, जमहूरियत में प्रोटेस्ट को देखा जाता है। तो यह हमारा दस्तूरी हक है कि हम इस बिल की खिलाफ वर्जी करते हुए इस बिल के मुखालिफत में अपने घरों से निकले। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोगों से यह बिल की मुखालिफत करना हमको बेहद जरूरी है। हमारी नस्लों के लिए हमको वक्फ जायदादों को छोड़ के जाना है, हमारी नस्लों के लिए मसाजिदों को बचाना है, खानखाओं को बचाना है, ईदगाहों को बचाना है, आशुर खानों को बचाना है,
कब्रिस्तानों को बचाना है। मेरे भाई, आप मुल्क की हालत अभी देख रहे हैं। मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूं। बिल मैं यही बोलूंगा कि इस बिल में इतने चीजें खतरनाक है। ये मुल्क में अब तक के सबसे खतरनाक अगर कोई बिल लाया गया है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट में वक्फ का बिल लाया गया है। ये एनआरसी सीएए से भी बहुत खतरनाक बिल है। तो मैं अवामुन्नास से गुजारिश कर रहा हूं कि इस प्रोटेस्ट में बिलखुसूस नौजवानों से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं, अपने अहले खानदान के साथ एक दिन अपने कारोबार को तर्क करके, एक दिन अपने नौकरियों को तर्क करके, एक दिन अपने हर काम को तर्क करके, शादियों को अटेंड करना, सब चीज को छोड़ के आप लोग जरूर इस बिल की मुखालिफत के लिए 31 मई को धरना चौक बमुकाम इंदिरा पार्क 2 बजे से 5 बजे तक ये धरना है। आप लोग आइए और ये आपका आना शहादत देगा कि उम्मत मोहम्मदिया के खिलाफ एक साजिश के तहत जो बिल निकाला गया था उसकी मुखालिफत में आप खड़े थे। आप अपनी उम्मत के लिए खड़े थे, आप अपनी कौम के लिए खड़े थे, आप अपने मुल्क के लिए खड़े थे। मैं फिर एक बार आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स है, आपकी बात अगर कोई 4 आदमी सुनते हैं तो आप एक अपना वीडियो बनाकर अपलोड करिए। आपकी बात अगर 100 आदमी सुनते हैं तो आप अपना वीडियो बनाकर अपलोड करिए। इमाम मौजन खतीब साहब से, मस्जिद कमेटियों से मैं बहुत दिल से गुजारिश करता हूं कि मसाजिदों में 5 टाइम ऐलान कराइए, अपने मसाजिद के अज़ान के पोंगे में ऐलान कराइए कि भाई हमको 31 मई को धरना चौक जाना है। इस वक्फ बिल के खिलाफ, जो वक्फ एक्ट निकला गया है, इस कानून के खिलाफ हमको खड़ना है। किसानों ने अपना बिल वापस कराया था, जिद्दोजहद करके डट के लड़े थे। हम तो उम्मत मोहम्मदिया है, हम 313 रहकर हजारों से लड़े थे। तो ये एक बिल और हमारे मुल्क का जो दस्तूर बचाना है, क्या हम इसके लिए अपने घरों से नहीं निकलेंगे? मैं उम्मीद करता हूं तमाम लोगों से और तमाम तेलंगाना के मुसलमान जिम्मेदारों से, इस मार्च के लिए आप भी ये बात अवाम तक पहुंचाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एप्पल कंपनी के जाली मोबाइल चीज़ें बेचने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जगदीश मार्केट में एक दुकान से टास्क फोर्स और एबिट्स पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये लोग एप्पल का नाम और लोगो लगाकर नकली चीज़ें असली बताकर लोगों को धोखा दे रहे थे। पुलिस ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए की जाली चीज़ें जैसे एयरपॉड्स, पावर बैंक, चार्जर, केबल, बैक कवर और दीगर स्टिकर्स जब्त किए। इन लोगों ने यह सामान मुंबई से मंगवाया था। गिरफ्तार अफराद को मज़ीद कार्रवाई के लिए एबिट्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में विक्रम सिंह, सुरेश कुमार, नाथाराम चौधरी और मोहम्मद सरफराज शामिल है। भैंसा में पुलिस की जानिब से वक्फे से कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आज महकमे पुलिस की जानिब से सुबह के अव्वलीन सातों में भैंसा मंडल के मौज़े मिर्ज़ापुर में ज़िला निर्मल एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार IPS की निगरानी और भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नायलू की क़ियादत में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान बग़ैर कागजात के 62 मोटरसाइकिल और 13 3 व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया गया। फोटो చాలా మందికి మొబైల్లో ఫోటో ఆటో డౌన్లోడ్ ఉంది. ఆటో డౌన్లోడ్ అయితే మొత్తం మొబైల్ నేను మీ మొబైల్ సీజ్ చేయవచ్చు. సో ఇది మొబైల్లో వాట్సాప్లో పోయి స్టోరేజ్ అండ్ డాటాలో ఆటో డౌన్లోడ్ ఆఫ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఆటో డౌన్లోడ్ ఆఫ్ చేయాలి.
ఇప్పుడు ముందు చాలా సైబర్ ఫ్రాడ్ మీకు కాల్ చేసి మీ ఓటీపీ అడిగి మోసం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అది కూడా చేయడానికి అవసరం లేదు. ఒక ఫోటో పంపిస్తే మీ మొబైల్ నా కంట్రోల్లో వస్తుంది. तो व्हाट्सएप లో పోయి స్టోరేజ్ అండ్ डाटा దీంట్లో ఆటో డౌన్లోడ్ ఆఫ్ చేయాలి. सुनना है किसी को ऑफ करा दो. नहीं है सर, इसमें नहीं ऑटो डाउनलोड नहीं. हाँ सबका हाँ ఫోన్ నెంబర్ మన డైరెక్ట్ ఫోటోస్ వీడియోస్ డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. మనం దాంట్లో ఆఫ్ చేసి ఉంటే మనకు కావాల్సి ఉంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే డౌన్లోడ్ అవుతాయి. లేకపోతే మనం ఆటో డౌన్లోడ్ ఉంటే అన్నీ డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. డైరెక్ట్ మన మీ గ్యాలరీలో చూడండి, మీకు వచ్చిన అన్నీ డౌన్లోడ్ అయ్యి మీ గ్యాలరీలో ఉంటాయి. అలా కాకుండా అది ఆటో డౌన్లోడ్ ఆఫ్ చేసి ఉంటే మీకు అవసరం ఉంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీరు బటన్ క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్ సీఏ గారు చెప్పారు కదా, ఎప్పుడైనా సైబర్ ఫ్రాడ్ అయినప్పుడు 1930కి కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ రోజు దొంగతనం అయినప్పుడు 2-3 రోజుల తర్వాత మన పోలీస్ స్టేషన్లో మేము వస్తున్నారు. అప్పుడు వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. దొంగతనం అయినప్పుడు అప్పుడే కాల్ చేయాలి 1930కి. అర్థమైందా? ముందు దొంగతనం చేయడానికి దొంగవాడు ఇంటికి వచ్చి దొంగతనం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు జార్ఖండ్, మహారాష్ట్ర, హర్యానా నుండి కూర్చొని ఇక్కడ దొంగతనం చేయవచ్చు. కొంచెం అలర్ట్ ఉండాలి. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీకు ఆఫర్ వాట్సాప్లో, టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ పంపిస్తే మీకు జాబ్ ఆఫర్ వస్తుంది, మనకు 500-1000 ఇవ్వండి. అట్లాంటి ఏం జాబ్ లేదు. అయింది కదా ఎప్పుడు ఇంతకుముందు ఇక్కడనే ఉన్నావు అంటే బార్బర్ అంటే 50,000 ఇస్తాం, నెలకు 60,000 ఇస్తాం అనుకుంటా మీరు అమౌంట్ కట్టండి అనుకుంటే కొందరు బాగా మంది కట్టారు. यस, अट्ला चेक करनी. देखो मेहनत करने से पैसा आता है, मोबाइल पे काम करने से पैसा नहीं आता. ऐसे मौसम लो ट्रक छोड़ दो. ओके, शायर दाग दहलवी की 120वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का अहतमाम किया गया। तहबीब लंदन के ज़ेर एहतमाम उर्दू के मुमताज़ शायर दाग दहलवी की 120वीं यौम पैदाइश के मौके पर 25 मई को बैक वक्त हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में रंग दाग के उन्वान से महफिल मुशायरे मुनक़िद हुए। हैदराबाद में यह महफिल ज़िमरिस बैंकेट हॉल, विजयनगर कॉलोनी में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मारूफ शायर डॉक्टर मोहसिन जलगावी ने की, जबकि SMD डोमान मेहमान ख़ुसूसी थे। मुशायरे की निज़ामत नजीब अहमद नजीब ने अंजाम दी और निगरान मुशायरा महमूद शाहिद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ मुमताज़ शोरा जैसे डॉक्टर मुमताज़ सुल्ताना, यूसुफ निज़ामी, निशात फ़ातिमा, नाहिदा अख्तर व दीगर ने अपना कलाम पेश किया। महफिल के बाद शोरा इकराम ने दरगाह यूसुफ़न शरीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी। बिखरी खस्मों का कच्चा जहर खुश्क आँखों में उतर जाएगा, होगा कुछ नहीं मगर मलाल और तसलसल भी ठहर जाएगा। और एक शेर बोल रही हूँ, वही उसकी बातें क्या तमाशा है, वो शख्स मुझ में बेतहाशा है। कुछ रोना हुआ, कुछ तड़पना हुआ, बिछड़ने के मौसम में बिछड़ना हुआ। शुक्रिया, थैंक यू। हिम्मत अफजाई के लिए बहुत बहुत। उसी जबान में उन्होंने शायरी की, इसलिए दाग को समझना बहुत ही आसान है। ऐसा लगेगा कि शेर सुनकर आपको लगेगा कि हमारे यहाँ के भी शायर सोचते होंगे कि भाई ये। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे बिजली के मुलाजिमीन के लिए 1 करोड़ रुपए की हादसाती इंश्योरेंस स्कीम की है शुरू। 4 आने के चिकन के लिए 12 आने के मसाले जैसा हाल, जहां किसानों को सिर्फ झूठे वादे और धोखे ही मिल रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत को लेकर KTR का तंज। खलीज बंगाल में पैदाशुदा कम दबाव के सबब तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हो रही है बारिश। 29 मई तक जारी रह सकता है ये सिलसिला, येलो अलर्ट किया गया जारी। तेलंगाना के आज़मीन हज का 27वां काफिला रवाना। असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद की शिरकत, झंडी दिखाकर काफिले को किया रवाना। वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना में 31 मई को चलो तेलंगाना मार्च का किया जाएगा इनेकाद। उस्मान मोहम्मद खान की तमाम अफराद से शिरकत की अपील।
दिल्ली में कांग्रेस ओबीसी का राउंड टेबल इजलास, मुख्तलिफ वज़रा, एमपीज़ और दीगर कायदीन की शिरकत। एप्पल कंपनी के जाली मोबाइल चीज़ें बेचने वाले 4 अफराद को हैदराबाद सिटी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।